Hello everyone. In this session we'll be completing triangles, and basically I'll be completing your first we'll begin with area of triangles, then centers of the triangle, incenter, centroid, circumcenter and orthocenter. Then we'll move to congruency, then similarity, all the results of similarity, basically application in ladder theorem. Then we'll see right angle triangle, inside right angle triangle, all the results of that. Then we'll move to Sevas theorem, basically Cevian's properties of that, then Carnot's theorem. And with that we'll come to the end of this class. Okay, so that's it. Basically all the results I'll summarize in 45 minutes to 1 hour. Okay, each and every aspect I'll cover, so you don't have to explore anything beyond this. You have to just make sure that you are revising this part very concisely and very properly. Okay, that's it. Let's begin the class. So we'll begin with area of triangle. You have to make your own notes. Okay, area of triangle. Fine. So first formula is half base into height. Okay, half base into height. The triangle for your reference. So let's say this is the perpendicular and this is another perpendicular and this is another perpendicular. Fine. So let's say this is A, this is B and this is C. Okay, so I can say this delta, this represents area. Fine. This is equal to half base into height. So half A into the corresponding height. Let's say this is H1. Okay, H1, A into H1. Fine. This is again equal to half base B and corresponding height. Base B, let's say the corresponding height is H2. This is equal to half base, let's say base is C, half C and the corresponding height is, let's say, H3. Fine. So this is your first formula, half base into height. Fine. Now from this I can say A is to B is to C equal to 1 by H1 is to 1 by H2 is to 1 by H3. हम यहां से बोल सकते हैं रेशियो ऑफ द साइड्स इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स. फाइन. एंड ऑल्सो द वाइस वर्सा इज ट्रू. आई मीन H1 is to H2 is to H3. ये हो जाएगा आपका 1 by A is to 1 by B is to 1 by C. ओके, दिस इज योर फर्स्ट रिजल्ट. अब ये बहुत ज्यादा यूज होगा क्वेश्चंस में. ठीक है, सो मेक श्योर टू राइट ऑल ऑफ दिस. फाइन. Let's move to the next result. So next result is let's say this is your reference triangle. This is your reference triangle. For result 2, A, B, C. ठीक है, कैपिटल लेटर्स रिप्रेजेंट एंगल्स एंड स्मॉल लेटर्स रिप्रेजेंट साइड. ये मैंने आपको पहले क्लास में बताया था. ठीक है, सो यहां से आपका सेकेंड एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आ जाएगा. डेल्टा रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल. दिस इज हाफ बी सी. ये दो साइड को मैं कंसिडर कर रहा हूं एंड अंदर एंगल दिया हुआ है ए. सो हाफ बी सी साइन ए. अब इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल है. लेट्स से यहां से एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कीजिए. ठीक है, इफ यू ड्रॉप ए परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर, सो दिस एंगल ए हम लोग बोल सकते हैं दिस इज सी साइन ए. ये मैंने पहले क्लास में आपको बताया था कुछ कॉन्फ़िगरेशंस, 3 कॉन्फ़िगरेशंस, वही कॉन्फ़िगरेशन का मैं यहां पे यूज कर रहा हूं. ठीक है, सो हाफ बेस बी इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट. हाइट क्या है? सी साइन ए. वही मैंने फॉर्मूला लिखा है यहां पे. ओके, हाफ बी सी साइन ए. सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. नाउ फ्रॉम दिस यहां से और एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा. पहले क्लास में मैंने आपको बताया था साइन रूल. ओके, साइन रूल बताया था मैंने. साइन रूल क्या था? यहां पे लेट मी राइट इट हियर. ए बाय साइन ए, ये मैंने पहले क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था. बी बाय साइन बी इक्वल टू स्मॉल सी बाय साइन सी इक्वल टू 2r. r इज योर सर्कम रेडियस. फाइन, r इज योर सर्कम रेडियस. सो यहां से आपको एक चीज क्लियर हो रहा होगा. सी दिस एस्पेक्ट, a बाय साइन ए इक्वल टू 2r अगर है तो
आपका साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा a बाय 2r। आई होप दिस पार्ट इज गेटिंग क्लियर। a बाय साइन ए इक्वल टू 2 इंटू आर, सो साइन ए हो जाएगा a बाय 2r। सो फ्रॉम दैट आई कैन राइट दिस एरिया फॉर्मूला विल बी a b c बाय 4 इंटू कैपिटल R। आई होप इट इज गेटिंग एब्सोल्युटली क्लियर। क्या क्या किया है मैंने, कुछ नहीं किया है, साइन ए के जगह पे बस रिप्लेस कर दिया है a बाय 2r, वो आपको यहां से क्लियर हो रहा होगा। दिस पार्ट इसको रिलेट कीजिए इसके साथ, ठीक है। सो यहां पे साइन ए क्या हो रहा है, a बाय 2r, बस उसी को मैंने यहां पे रिप्लेस किया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज abc बाय 4r, ठीक है। जब सर्कम रेडियस दिया होगा एंड 3 साइड्स दिया होगा, दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। फाइन, आई होप दिस पार्ट इज गेटिंग क्लियर गाइस। ओके, ये 3 फॉर्मूला हमने देख लिया। फोर्थ फॉर्मूला, ओके, लेट मी राइट हियर इटसेल्फ। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं ताकि एक ही पेज में आपका हो जाएगा ये चीज। ओके, आपके लिए नोट्स बनाना इजी रहेगा। लेट मी इरेज दिस, ठीक है। फोर्थ फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेट मी okay, so fourth formula will be 3 लिख लिया मैंने, 4 हो जाएगा डेल्टा मीन्स एरिया इक्वल टू स्मॉल r इंटू एस। अब स्मॉल r क्या है, दिस इज इन रेडियस, ठीक है, दिस इज इन रेडियस, इन रेडियस इंटू एस क्या है, एस इज सेमी पेरीमीटर, ठीक है, सम ऑफ 3 साइड्स बाय 2। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सेमी पेरीमीटर। अब फिफ्थ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिफ्थ फॉर्मूला हो जाएगा आपका हेरॉन्स फॉर्मूला, हेरॉन्स फॉर्मूला, ठीक है, दैट इज डेल्टा इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू ये बी लिखा है मैंने, ठीक है, इंटू एस माइनस सी, उसका रूट ओवर। दिस इज हेरॉन्स फॉर्मूला, ठीक है, दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन 3 साइड्स आर गिवन। नाउ लास्ट फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मार्क हियर दिस सेकेंड फॉर्मूला, इसको मार्क कीजिए। इसमें मैं कुछ चेंजेस करूंगा फॉर दिस सिक्स्थ फॉर्मूला। यहां पे देखिए ये जो b लिखा है, फ्रॉम साइन रूल आई कैन से स्मॉल b इक्वल टू 2r साइन b। लाइकवाइज स्मॉल c को मैं लिख सकता हूं, दिस इज 2r साइन c। अब इसको मैं यहां पे रिप्लेस करूंगा, अगर रिप्लेस करूंगा तो फिर एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू आर स्क्वायर सर्कम रेडियस स्क्वायर इंटू साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c। सो दीज आर 6 फॉर्मूले फॉर एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये सब आप नोट कर लीजिए, मेक श्योर टू नोट ऑल ऑफ दिस गाइस, ये सब कुछ आप नोट कर लीजिए। आई होप दिस पार्ट इज गेटिंग क्लियर। 6 फॉर्मूला कहां से आया, कुछ नहीं किया है, b की जगह पे हमने 2r साइन b लिख दिया, c की जगह पे 2r साइन c लिख दिया एंड 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज 2r स्क्वायर साइन a साइन b साइन c। दीज आर 6 फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी मैं बोल देता हूं थोड़ा यहीं पे ही। अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिस इज केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ए, ठीक है। अब यहां पे दिस रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट, एरिया इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप हेडिंग करके लिखिए अपने नोट्स में, दिस इज √3/4 इंटू साइड है a, तो √3/4 a स्क्वायर। इसके केस में आपका इन रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा a/2 इंटू √3, राइट, 2 इंटू √3 एंड सर्कम रेडियस कैपिटल R विल बी a/√3 मीन साइड बाय √3, ठीक है। अब प्रूविंग ऑल्सो इज वेरी सिंपल। यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अगर सब कुछ 60 डिग्री है, अगर आपका 90 डिग्री के अपोजिट a है, तो फिर यहां पे दिस विल बी 30 डिग्री, इसके अपोजिट हो जाएगा आपका a/2 एंड दिस हाइट विल बी √3/2a, ठीक है। अब एरिया यू कैन इजीली प्रूव हाफ बेस a इंटू हाइट, सो आपका आ जाएगा √3/4 a स्क्वायर। लाइकवाइज ये सब कुछ आप बस नोट कर लीजिए। आई विल प्रूव ऑल ऑफ दिस व्हेन वी डू इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये सब कुछ मैं प्रूव करूंगा, बस दिस रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो आप ये नोट कर लीजिए। सर्कम इन रेडियस हो जाएगा आपका साइड बाय 2 इंटू √3, सर्कम रेडियस साइड बाय √3, दिस इज √3, फाइन। सो ये आपका कुछ बेसिक्स हो गया। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। ओके, लेट्स स्टार्ट सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। अब सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल में फर्स्ट विल डिस्कस इन सेंटर। इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड इन सेंटर, फाइन। ओके, सो
फर्स्ट रिजल्ट्स, मैं डायरेक्ट यहां पे रिजल्ट्स लिखूंगा। आज वी हैव टाइम कांस्टेंट है, एक ही क्लास में हम लोग सब कुछ समराइज कर रहे हैं, सबका प्रूफ मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, बट आई विल गिव स्लाइड बैकग्राउंड टू एवरीथिंग। जो भी मैं बताऊंगा उसका बैकग्राउंड दूंगा, बट सब रिजल्ट्स मैं आपके सामने लिख लूंगा यहां पे। सो दैट्स इट। सब प्रूफ हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रूफ करने में बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है, उतना टाइम हमारे पास नहीं है, वी हैव टाइम कांस्टेंट, ठीक है। सो यहां पे बेसिकली आपका रिवीजन हो रहा है, सारे रिजल्ट्स आई विल डिस्कस। सो यहां पे फर्स्ट रिजल्ट इज इन केस ऑफ इन सेंटर, this is A, B, C. Okay, let's say this is your angle bisector, this is alpha and this is alpha, ठीक है, this is D, and if this is theta, so this will be 180 degree minus theta, fine, okay। अब यहां पे first result will be AB by AC, this equal to BD by DC, ठीक है। इसका प्रूफ बोल दे रहा हूं मैं, इसका प्रूफ यहीं पे बोल दे रहा हूं मैं, प्रूफ आई विल डू यूजिंग साइन रूल, ठीक है। लेट से कंसिडर द ट्रायंगल ABD, अगर आप ABD को कंसिडर करेंगे तो फिर आई विल से AC बाय साइन थीटा, AC बाय साइन थीटा, दिस विल बी BD बाय साइन अल्फा, राइट, ओके। नाउ इफ आई कंसिडर, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर रहा हूं मैं, ठीक है। लाइकवाइज अगर ट्रायंगल ADC में कंसिडर करूंगा, अगर ट्रायंगल ADC इफ आई कंसिडर, तो मुझे एक बात बताइए, AC गाइस दिस इज AB, ओके, ये AB हो जाएगा, AB बाय साइन थीटा, ओके। अब ट्रायंगल ADC को अगर मैं कंसिडर करूंगा तो फिर AC बाय साइन थीटा यहां पे क्या है 180 माइनस थीटा, देखिए साइड हो जाएगा AC डिवाइड बाय, मैं लिख दे रहा हूं, दिस इज साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब साइन 180 माइनस थीटा, दिस इज बेसिक ट्रिगोनोमेट्री, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, ये आपको क्लियर हुआ होगा, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। सो दिस आई कैन राइट, दिस पार्ट आई कैन राइट, दिस पार्ट साइन 180 माइनस थीटा को आई कैन राइट साइन थीटा, राइट। AC बाय साइन थीटा इक्वल टू DC बाय साइन अल्फा, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन 2। नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 by 2, इफ वी डिवाइड इक्वेशन 1 by 2, सो आई कैन से डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by 2, आई कैन से AB बाय AC इक्वल टू BD बाय DC। तो दिस इज योर फर्स्ट रिजल्ट, ठीक है। प्रूफ मैंने आपको बता दिया, हर चीज का प्रूफ नहीं करेंगे हम लोग, पहली मतलब दिस वाज फर्स्ट रिजल्ट, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चंस में बार बार यूज होगा, मेंस लेवल क्वेश्चंस में। सो इसको हमने प्रूफ कर लिया, ठीक है। सो दिस पार्ट इज गेटिंग क्लियर, राइट। इसके बाद सेकेंड रिजल्ट, आई एम इरेजिंग दिस, ओके। नाउ कमिंग टू द सेकेंड रिजल्ट ऑन इन सेंटर। आपका सेकेंड रिजल्ट हो जाएगा, लेट मी ड्रॉ रेफरेंस ट्रायंगल फॉर यू, यहां पे एक रेफरेंस ट्रायंगल मैं ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए, यहीं पे कर रहा हूं, ओके। दिस A, B, C, this is small c, this is small b, this is small a, right, and intersection point is small I, okay, in center है वो। उसके बाद let's say this point is D, this point is E, this point is F, ठीक है। ये पॉइंट है आपका F, ये पॉइंट है आपका F, fine, okay। So from here I can write AI by ID, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज AI by ID, दिस इज B स्मॉल b प्लस स्मॉल c, ठीक है, साइड्स का सम बाय स्मॉल a, ठीक है। likewise by symmetry you can write CI by IF, CI by IF, this is CI by IF क्या होगा, this is B plus A, small b plus small a,
by small c. Fine. Likewise, you can write bi by ie. Bi by ie. This will be bi by ie. This is a plus c by b. This is a plus c by b. Okay. I hope this part is getting clear, right? दो रिजल्ट लिख लिया हमने. This is very important. Okay. Third result. Third result is area. Area of triangle is small r into s. ये फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था. This is very important. Okay. S is semi perimeter and small r is your in radius. उसके बाद fourth result is let me just erase this 1 second. Fourth result is आपका, अगर ये आपका एक ट्रायंगल है, ये आपका लेट से इन सेंटर है, इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, इफ दिस इज आई, ठीक है, आई. सो इन सेंटर को मैं ज्वाइन कर रहा हूं. सो आई कैन से एंगल बी आई सी, दिस इज इक्वल टू एंगल बी आई सी, दिस इज 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, ठीक है, हाफ ऑफ एंगल ए. दिस इज एंगल ए. ओके. लाइकवाइज आई कैन से बाय सिमेट्री बी आई ए, एंगल दिस इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल सी. फाइन. लाइकवाइज आई कैन से ए आई सी, एंगल ए आई सी, दिस इज 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए आई सी, सी दिस एंगल, हाफ ऑफ एंगल बी. फाइन, राइट. चार रिजल्ट हमने लिख लिया. अब फोर्थ रिजल्ट लिख लिया हमने. सो फिफ्थ, लेट्स मूव टू द फिफ्थ रिजल्ट. फिफ्थ रिजल्ट क्या होगा ये आप नोट कर लीजिए. आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. फाइन. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रिजल्ट ऑन इन सेंटर. अगर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर, दिस इज एक्सटर्नल बाइसेक्टर गाइस. अब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है. लेट्स से दिस इज मीटिंग एट आइडियास. ओके. सो आई विल से एंगल बी आइडियास सी, दिस इज B idea C equal to 90 degree minus half of, this is half of angle A. I hope it is getting clear guys. Okay. इसका opposite है तो you can relate. Fine. इसका external bisector, so this is opposite है तो 90 degree minus half of angle A. Now result 6. Result 6 आपका आएगा, ये हमने देख लिया. उसके बाद एक सर्कल पे देख लेते हैं. एक सर्कल, लेट्स से यहां पे एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं. यहां पे अगर एक सर्कल, ये आपका एक्स सेंटर आ गया यहां पे, ठीक है, इनके एंगल बाइसेक्टर्स का मीटिंग पॉइंट. अब इसको सेंटर मान के अगर एक सर्कल हम लोग ड्रॉ करेंगे, सेंटर मान के अगर एक सर्कल हम लोग यहां पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है. लेट्स से दिस इज योर रेडियस, टेंजेंट जैसा एक्ट कर रहा है तो यहां पे 90 डिग्री हो जाएगा ये. तो एक सर्कल बोलते हैं इसको. सो यहां पे आई कैन से एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, लेट्स से दिस इज स्मॉल आर सबस्क्रिप्ट ए. सो दिस इज आर ए इंटू एस माइनस स्मॉल ए. स्मॉल ए क्या है? दिस पार्ट, ये इसको टच कर रहा है गाइस. दिस सर्कल इज टचिंग दिस. थोड़ा सा डायग्राम गलत हो गया. डायग्राम मतलब ये टच करेगा इसको ऐसे, ठीक है, ऐसे जाएगा टच करके. 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट डू इट. देखिए, okay, so this opposite to angle A will be small a side, so RA into S minus A, ठीक है. Likewise अगर इसके opposite जाएगा आपका B के opposite, you can again write that as per symmetry, ठीक है. तो this is one result for एक circle. So ये आपको clear हो रहा होगा. Okay, now moving to next result.
नेक्स्ट रिजल्ट इज योर लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, यहां पे एक छोटा फिगर आपके लिए कर रहा हूं मैं, यहां पे एक छोटा फिगर कर रहा हूं मैं फॉर लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर कैसे आप करेंगे, इसमें दो फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा। एक आएगा आपका स्टुअर्ट थ्योरम से और एक आएगा यूजिंग साइन रूल। ठीक है, देखिए दिस इज 7th पॉइंट इज योर लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। इसके फॉर्मूले में डिस्कस करूंगा। ठीक है, दो फॉर्मूले बताऊंगा आपको। लेट्स से दिस इज योर ट्रायंगल। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर एक कर रहा हूं मैं, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस इज ए बी सी। ठीक है, दिस इज स्मॉल सी, दिस इज स्मॉल बी, दिस इज स्मॉल ए। फाइन, अब दिस इज लेट्स से डी, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एडी इज द एंगल बाइसेक्टर, सो उसका लेंथ हो जाएगा आपका एडी स्क्वायर इक्वल टू बी इंटू सी, स्मॉल बी इंटू स्मॉल सी, स्मॉल बी इंटू स्मॉल सी माइनस बी डी इंटू डी सी, बी डी इंटू डी सी। फाइन, दिस इज कमिंग फ्रॉम, दिस रिजल्ट इज कमिंग फ्रॉम योर स्टुअर्ट थ्योरम। ठीक है, आप प्रूव कर सकते हैं बहुत आराम से। लाइकवाइज इसका सेकेंड आपको फॉर्मूला बोल रहा हूं एंगल बाइसेक्टर का, ए डी इक्वल टू 2b इंटू सी, ए डी का लेंथ, दिस इज 2b इंटू सी, स्मॉल b इंटू स्मॉल सी बाय b प्लस सी कॉस a बाय 2। ठीक है, कॉस a बाय 2। दो फॉर्मूला मैंने बोला एंगल बाइसेक्टर का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। दिस इज कमिंग फ्रॉम साइन रूल। फाइन, अब प्रूव नहीं कर सकते इसको, टाइम लगेगा उसमें, सो दिस टू पार्ट यू कैन नोट डाउन। फाइन, अब मूविंग टू रिजल्ट नंबर 8। Result 8. Let's say now if this is your reference triangle, this is your perpendicular, this is another perpendicular, and this is another perpendicular. Fine. So यहां पे हम लोग बोल सकते हैं 1 by r. r is your end radius. This is 1 by h1 plus 1 by h2 plus 1 by h3. फाइन, दिस इज योर रिजल्ट नंबर 8। अगर तीन आपको हाइट्स का लेंथ पता है तो फिर दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, स्मॉल आर इज योर इन रेडियस। ओके, नाउ नाइन्थ रिजल्ट इज योर इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, सो लेट्स से दिस इज एंगल थीटा, आर्गुमेंट एंगल, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइट। So in case of right angle triangle, small r equal to, small r is perpendicular plus base minus hypotenuse by 2. Fine, यह आपका हो गया in case of right angle triangle results. Fine, so हमने 9 results डिस्कस किए आपका इसमें एंगल बाइसेक्टर में। Now we'll move to next center of triangle, which is your centroid. Fine, ये सब आपने नोट कर लिया होगा। Okay, I have not skipped anything, right? I hope I have not skipped anything. Okay. Next is, okay, next center of triangle is your centroid. Centroid is the angle, is the point of intersection of medians. सेंट्रॉयड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। अब इसमें सारे रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन। रिजल्ट वन, सेंट्रॉयड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। फाइन, ओके, सो मीडियन मतलब अपोजिट साइड को डिवाइड करेगा 1:1 के रेशियो में। मिड पॉइंट, दिस इज बेसिकली द मिड पॉइंट। ओके, सो दिस इज ए बी सी। ठीक है, दिस इज सेंट्रॉयड, इसको मैं जी से नाम दे रहा हूं। ओके, और ग्रेविटी सेंटर इसको बोलते हैं, दिस इज जी।
So basically first point is centroid divides area of triangle into 6 equal areas. Centroid divides area of triangle into 6 equal areas. This area is equal to this area, 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 is equal to this area. So centroid divides area of triangle into 6 equal areas. ये आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए, ठीक है. This is the first point. Okay, 6 equal areas, ठीक है. Next, next है, this is, if this is centroid, centroid divides median in the ratio 2:1. Centroid divides median in the ratio 2:1. देखिए, if this is the centroid small g, then this is 2 and this is 1. ये रेशियो है 2:1, ठीक है. So I can say AG is to GD, this is 2:1. Fine. Likewise, BG is to GE. This is again in the ratio 2:1. Likewise, CG into CG is to GF. This is again in the ratio 2:1. ये सबका लेंथ ऑब्वियसली इक्वल नहीं है. 2:1 मतलब लेंथ्स आर नॉट इक्वल. दिस इज स्केलेन ट्रायंगल, राइट. दिस आर बेसिक थिंग्स. रेशियो रहेगा 2:1. जो भी लेंथ रहेगा विल डिवाइड इन द रेशियो 2:1. फाइन. दिस इज गेटिंग क्लियर, राइट. दिस लेंथ्स आर नॉट इक्वल. दिस इज स्केलेन ट्रायंगल, राइट. ओके. सो 2 रिजल्ट्स आर प्रूव्ड. नाउ मूविंग टू third result. Result number 3. Fine. We'll see length of median. Length of median. यहां पे this theorem is very important. This is Apollonius theorem. This is Apollonius theorem. Apollonius theorem. Fine. This is Apollonius theorem. ठीक है. अब इसका भी प्रूफ है from Stewart theorem. Fine. You can prove this. So Apollonius theorem is what? This is A, B, C. यहां से आप लेंथ ऑफ मीडियन निकाल सकते हैं. दिस इज, लेट्स से दिस इज द रेशियो 1:1 obviously. Okay, so I can say AD is the median, guys. This side is equal to this side. Okay, length equal है, this is the median. So I can say AB square plus BC square. This is equal to 2 into AD square. AD is the median. AD square plus any part you can take, either BD or DC. दोनों का लेंथ इक्वल है, so you can take any part. Let's say DC square. ठीक है. This is your result number 3. From this you can find the length of the median. Okay, this is Apollonius theorem. This is very important. Moving to fourth result. Fourth result is sum of sides AB plus BC plus CA. This is greater than sum of medians. Sum of respective medians. Sum of sides is greater than sum of medians. ठीक है. अब इसमें now this part is important. अगर this is, let's say मैं medians draw कर दे रहा हूं. BD, these are medians. Okay. Now fifth result is AB plus BC plus CA. This into 3. Okay, this part is less than, this is less than 4 into medians, sum of medians, AD plus BE plus CF. ठीक है. You can remember this very easily. जहां पे साइड रहेगा, साइड के साइड में रहेगा 3, and for medians this is 4. जो obviously 4 is greater than 3, so ये this is way to remember. आप ऐसे याद रख सकते हैं. Okay, this inequality is very important. ये एग्जाम में बार बार यूज होगा. ठीक है. This is important. मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूं. This is important. Okay. Now point number 6. Point number 6 is 3 into, this was inequality. Now moving to the equality part. 3 into AB square plus BC square plus CA square. Okay, this is equal to 4 into AD square plus BE square plus CF square. Fine. Now this equality is very important. ये median में this is the most important result. Okay, this part is very important. 3 होगा multiply
साइड्स के साथ होगा 3, मीडियंस के साथ होगा 4. दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन, नोट दिस. मूविंग टू द नेक्स्ट रिजल्ट. 6 रिजल्ट हमने देख लिया. मूविंग टू द नेक्स्ट रिजल्ट. नोट ऑल ऑफ दिस. रिजल्ट नंबर 7. नाउ in a triangle, okay, let's say this is 90 degree and this median is 90 degree. Oh sorry, this is the median, and if medians intersect at right angles, okay, this is let's say E, okay, this is let's say D, this is E, okay, so I can say if medians intersect at right angles, then AB square plus AC square equal to 5 BC square. किस कंडीशन में? when medians intersect at right angles. Fine, note this. Now result number 8. in case of right angle triangle, now this is for right angle triangle. For right angle triangle, this is 90 degree, right? So let's say this is the median, and from here this is the median. Fine, this is A, right angled at B. Fine, this is let's say M, this is let's say N. ठीक है. So here I can say for right angle triangle, first result, this is median guys, this is equal, this is median. AN square plus CN square, this is 5 by 4 AC square. Fine, AN square plus CN square. AN square, this is the median, and CN square, this is equal to 5 by 4 AC square. Also I can say second result, MN square plus AC square, this is equal to MN square plus AC square equal to AN square plus CN square. ये दो रिजल्ट्स आपको याद होना चाहिए. ठीक है, इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल मीडियन का केस में. ठीक है, आई होप यू रोट ऑल ऑफ दिस. फाइन, नाउ मूविंग टू द लास्ट रिजल्ट. लास्ट रिजल्ट हमने 8 रिजल्ट ऑलरेडी वी हैव चेक्ड. नाउ लास्ट रिजल्ट इन केस ऑफ मीडियंस. ठीक है, लास्ट रिजल्ट इन केस ऑफ मीडियंस, if 3 medians are given, if 3 medians are given, then area of triangle is 3 medians are given, let's say M1, M2, M3. These are 3 medians which are given. ठीक है, so area of triangle is 4 by 3 रूट ओवर SM. बताऊंगा SM क्या है. SM माइनस M1 इंटू SM माइनस M2 इंटू SM माइनस M3. फाइन, नाउ SM इज S सबस्क्रिप्ट M, दिस इज M1 प्लस M2 प्लस M3 बाय 2. फाइन, now this is the formula to find area of triangle when medians are given. Basically find the area of the triangle considering these are sides, then just multiply 4 by 3. Okay, find the area of triangle considering these are sides, M1, M2, M3 are sides, then multiply 4 by 3, that will give you the area of the triangle when medians are given. ठीक है, so medians हमने देख लिया centroid. Now moving to the third center which is your circumcenter. Fine, let's move to circumcenter. This is the third center. Fine, this is the third center. Circumcenter is the point of intersection of
side bisectors, side perpendicular bisectors. This is the point of intersection of side perpendicular bisectors. ठीक है, this is circumcenter, side perpendicular bisectors का. Now इसमें results are very limited. Okay, first result is this is your circumcenter. One second. This point is your circumcenter. This point is your C. Okay, then I can say, ये results आप सबको पता है, ठीक है. This is A, B, C. Then this is basically 2A. If angle formed at circumference is A, then at center is 2A. ठीक है, and these are circumradius, कैपिटल R, कैपिटल R. ठीक है, ट्रायंगल को जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है दैट इज सर्कम सर्कल. ठीक है, ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करेगा. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट रिजल्ट. दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट. ओके, दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट. ओके, सर्कमफरेंस में जो होगा सेंटर में उसका डबल एंगल होगा. दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट. ओके, एंड सेकेंड रिजल्ट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू ए बी सी बाय 4 इंटू कैपिटल आर. इसका प्रूफ मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं व्हाइल स्टार्टिंग द क्लास. ठीक है, दिस इज स्मॉल ए, दिस इज स्मॉल बी, दिस इज स्मॉल सी. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ साइड्स डिवाइड बाय कैपिटल आर, 4 इंटू कैपिटल आर. ठीक, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल. नाउ थर्ड रिजल्ट इज डिस्टेंस बिटवीन circumcenter and in center. Distance between circumcenter and in center. Distance is given by d is equal to r square minus 2r into r root over r square. R is your radius, small r is your in radius. R square minus 2r into r. Okay, this is the distance between circumcenter and in center. Make in your own notes, write in your own words. Distance between circumcenter and in center is r square minus 2r into r. Fine, ये आपका क्लियर हो गया, राइट? नाउ लास्ट पॉइंट इज इन अ ट्रायंगल. बेसिकली आपका ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर, इसको लास्ट में डिस्कस करते हैं, और एल्स लेट्स डिस्कस दिस आफ्टर. इसको ऑर्थोसेंटर के बाद डिस्कस करेंगे. ठीक है, लिव इट. सो अब नेक्स्ट सेंटर में मूव करते हैं, विच इज ऑर्थोसेंटर. ठीक है, यूलर लाइन का जो होता है, जो सेंट्रॉइड डिवाइड करता है ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर को इन द रेशियो 2:1, वो लास्ट में डिस्कस करेंगे. ठीक है, ओके. नाउ मूविंग टू ऑर्थोसेंटर, द फोर्थ सेंटर. ऑलरेडी 3 सेंटर्स वी हैव डिस्कस्ड ऑल द रिजल्ट्स. In case of orthocenter, this is the point of intersection of altitudes. This is the point of intersection of altitudes. Fine. This is your orthocenter. So इसमें results क्या होगा? इसको बाद में करेंगे. This is A, this is B, this is C, small c, small b, small a. This is your orthocenter, point of intersection of altitudes. Okay, this is O. So first result is BOC, angle BOC. This is 180 degree minus angle A. You can prove it very easily. ठीक है, ये है 90 डिग्री, सो ऑब्वियसली ये दो का सम हो जाएगा. ये है 90 डिग्री, 90 डिग्री, सो दिस इज 180, सो ये दो का सम अगेन 180 डिग्री होगा, राइट? दिस आर वर्टिकली अपोजिट, सो दिस इज 180 माइनस ए. फाइन. सो दिस इज फर्स्ट रिजल्ट. ओके, इसका सेकेंड रिजल्ट आपका आ जाएगा. सेकेंड रिजल्ट इज AO into this is, let's say this is point D, this is point E, this is point
Okay, this side is small c. Okay, second point is AO into OD equal to BO into OE equal to CO into OF, CO into OF. ठीक, फाइन, these are two results. Okay, ये आपको याद रखना है. And one more thing, if this is 90 degree and this is 90 degree, okay, so let's say this is D, then एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे आएगा, हाफ ए बी इंटू बी सी, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल यू कैन ऑल्सो फाइंड यूजिंग हाफ ए सी इंटू बी डी. ओके, सो फ्रॉम दैट आई कैन राइट बी डी इक्वल टू ए बी इंटू बी सी डिवाइड बाय ए सी. ओके, सो दिस थ्री रिजल्ट्स यू हैव टू रिमेंबर फॉर ऑर्थो सेंटर. फाइन, सो ऑर्थो सेंटर हमने समराइज कर दिया. फाइन, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ 4 सेंटर्स. अब यहां पे एक इंपोर्टेंट रिजल्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ऑफ यूलर लाइन. ओके, यूलर लाइन. लेट्स से दिस इज योर ऑर्थो सेंटर, दिस इज योर सर्कम सेंटर, एंड बीच में कहीं लाया करेगा आपका, बीच में कहीं आपका लाया करेगा सेंट्रॉइड, बीच में आपका लाया करेगा सेंट्रॉइड. नाम दे रहा हूं मैं, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड. हाँ, यूलर लाइन. ओके, हाँ, यूलर लाइन. कुछ दिक्कत हो गया था स्क्रीन पे. हाँ, सो दिस इज, लेट्स से दिस इज अ ट्रायंगल. ट्रायंगल, लेट्स से दिस इज योर ऑर्थो सेंटर. ठीक है, दिस इज योर सर्कम सेंटर, एंड इसके बीच में कहीं लाया करेगा आपका सेंट्रॉइड. ठीक है, सेंट्रॉइड को मैं नाम दे रहा हूं जी, स्मॉल जी, कैपिटल जी. ओके, ये तीन बेसिकली सेम लाइन पे लाया करते हैं. ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर, दे लाई इन द सेम लाइन. दैट लाइन इज कॉल्ड यूलर लाइन. ओके, दैट लाइन इज कॉल्ड यूलर लाइन, एंड वी आर टॉकिंग द केस ऑफ स्केल एंड ट्रायंगल. ओके, और ये हमेशा इसको डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:1. सेंट्रॉइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1. सेंट्रॉइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1. और मैं इसको थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको. दिस इज, इसको ज्वाइन कर दीजिए एंड ओके, शिट, यहां पे कर रहा हूं फिगर ठीक से. दिस इज योर ऑर्थो सेंटर, दिस इज योर सेंट्रॉइड, दिस इज योर सर्कम सेंटर. ठीक है, ये रेशियो हमेशा होगा 2:1. ठीक है, क्योंकि दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ओके, दिस इज ए बी सी, दिस इज ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर. हमेशा ये तीन सेम लाइन पे लाया करेंगे. दैट लाइन इज कॉल्ड यूलर लाइन, एंड सेंट्रॉइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1. ठीक है, सो दैट्स इट विद दिस. नेक्स्ट विल मूव टू congruency and similarity. Congruency and similarity. Okay, congruency and similarity. Okay, अब इसमें गाइस congruency आपको पता ही होगा, बहुत बेसिक चीज है. SSS, SAS, ASA, RHS, ये 4 कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. अगर दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो जाएंगे, सुपर इंपोज मतलब यू कैन डायरेक्टली, अगर पूरा कंप्लीटली मिल जाएंगे, दैट इज योर केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. उसको मैं और एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, द बेसिक थिंग्स. ओके, एंड सिमिलैरिटी के केस में क्या होगा, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर मींस उनके एंगल्स, इन केस ऑफ दो ट्रायंगल में एंगल्स विल बी इक्वल एंड साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल.
कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल, ये आपको पता है, बेसिक चीजें हैं. ऑफ केस ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है, सिमिलैरिटी केस में क्या, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर मींस एंगल्स इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. ठीक है, ओके, ये आपको पता होगा. सो मैं डायरेक्टली रिजल्ट्स की बात कर रहा हूं. द रिजल्ट्स दैट वी आर डिराइविंग फ्रॉम सिमिलैरिटी. सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी आई एम नॉट टीचिंग हियर, ओके, वरना बहुत टाइम उसमें निकल जाएगा. आई एम जस्ट सेइंग द रिजल्ट्स, ओके, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव में व्हिच इज मोस्ट इंपोर्टेंट इज दिस. राइट एंगल ट्रायंगल इन केस ऑफ राइट, बीच में कर रहा हूं फिगर, लेट मी ड्रा इट इन द मिडिल. दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फिगर जिसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा. दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल इनसाइड राइट एंगल ट्रायंगल. दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिस इज अनदर ABC. ठीक है, लेट्स से दिस इज D. सो फर्स्ट रिजल्ट, all of these are coming from similarity. Okay, so right angle triangle inside right angle triangle. So first result is BD equal to AB into BC, AB into BC divided by AC. Fine. Second result, BD square equal to BD square AD into DC, AD into DC. Fine. Third result, BC square equal to CD into AC, CD into AC. ठीक है. Fourth result, AB square equal to AD into AC. Fine. And fifth result, AB square by BC square, AB square by BC square, this will be AD by CD. So ये 5 रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. इसके ऊपर क्वेश्चन फॉर्म होता ही है. ओके, डेफिनेटली रिमेंबर दिस. दीज आर 5 रिजल्ट्स. नोट डाउन, या आप नोट डाउन कर दीजिए इसको. ओके, अब नेक्स्ट चीज पे मूव कर रहे हैं. ओके, ये आपका हो गया. नाउ नेक्स्ट, अभी हम लोग रिजल्ट्स डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट्स. ओके, दिस इज ABC. B का एंगल बाइसेक्टर एंड एक्सटीरियर एंगल, इस एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर. ओके, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. B का एंगल बाइसेक्टर एंड इसका एंगल बाइसेक्टर. लेट्स से दे आर मीटिंग एट D. ओके, सो this angle will be half of this angle, means I am to say angle D equal to angle A by 2. This is your first result. ठीक है, किस कंडीशन में होता है ये, किस कंडीशन में ये होता है, दिस इज योर फर्स्ट रिजल्ट. ठीक है, इसका एंगल बाइसेक्टर एंड इसका एंगल बाइसेक्टर मिल रहे हैं, तो दिस एंगल इक्वल टू हाफ ऑफ दिस एंगल. ठीक है, दिस यू नीड टू रिमेंबर. ओके, नेक्स्ट रिजल्ट इज next result is okay, let's say this is a triangle. Okay, this is the altitude. Okay, this is the altitude and इसका एंगल बाइसेक्टर है ये. दिस इज एंगल A, ट्रायंगल ABC. ओके, दिस इज E. AE is the altitude, AE है altitude, BD is the angle bisector of angle A. Sorry, AD is the angle bisector, AD is the angle bisector, AE is the altitude. Fine. इस केस में रिजल्ट क्या होगा, this angle, okay, basically ये है perpendicular from, so this angle EAD equal to angle B minus angle C by 2.
एंगल बी माइनस एंगल सी बाय 2। ओके, जो बड़ा एंगल होगा, ऑब्वियसली यहां पे कंडीशन क्या है, जो बड़ा एंगल होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि एंगल बी इज बिगर, जो बड़ा एंगल होगा उसमें से छोटा एंगल को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, दिस इज द बेसिक थिंग। ओके, क्या है बेसिकली, ए ई है ऑल्टीट्यूड एंड ए डी इज द एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, दिस इज एंगल बाइसेक्टर। फाइन, ये दो रिजल्ट्स आपको याद रहे। ठीक है, नाउ मूविंग टू द थर्ड रिजल्ट, result number 3. If this is a triangle, let's say this is your, this point is your orthocenter. Fine, this point is your orthocenter, this point is your circumcenter. ठीक है, circumcenter. So I am joining this. ठीक है, this angle एंड दिस एंगल ये इक्वल होंगे। ठीक है, इफ कंडीशन आपको याद रहा, दिस टू एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, दिस इज रिजल्ट नंबर 3, ए बी सी इन अ ट्राइंगल, इफ दिस इज द ऑर्थोसेंटर एंड दिस इज द सर्कमसेंटर, सो ये दो एंगल्स आपके इक्वल होंगे। फाइन, ये दो एंगल्स आपके इक्वल होंगे एंड दिस एंगल, दिस पर्टिकुलर एंगल, दिस एंगल विल बी एंगल बी माइनस सी, एंगल बी माइनस सी, b माइनस सी बाय 2 नहीं होगा, b माइनस सी बाय 2 लास्ट कंडीशन में था। यहां पे दिस एंगल विल बी, बिगर एंगल विल बी b माइनस सी। राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। बेसिकली अगर ये ऑर्थोसेंटर है, ये सर्कमसेंटर है, तो दिस टू एंगल्स विल बी इक्वल, ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल रहेगा। ठीक है, दिस इज योर थर्ड रिजल्ट। फोर्थ रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखेगा एग्जाम में, राइट। फोर्थ रिजल्ट इज okay, so a b c, a is parallel to b is parallel to c, इसको परपेंडिकुलर बोल रहा हूं, लेट्स से दिस आर परपेंडिकुलर्स, लेट्स से कंडीशन है बेसिकली a is parallel to b is parallel to c। ओके, इस केस में क्या होगा, b इक्वल टू दिस साइड, b इक्वल टू ए सी बाय ए प्लस सी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ए सी बाय ए प्लस सी। ओके, ये तीनों परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, ये फिगर आपको देखने मिलेगा एग्जाम में, तो डेफिनेटली रिमेंबर दिस रिजल्ट। इसका लेंथ होगा स्मॉल b इक्वल टू ए सी बाय ए प्लस सी, राइट, नोट इट डाउन। फाइन गाइस, ओके, सो दिस इज योर फोर्थ रिजल्ट। नाउ मूविंग टू द फिफ्थ रिजल्ट। बहुत कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। फिफ्थ रिजल्ट, वी आर मूविंग टू सीवियंस। दीज आर सम एडवांस रिजल्ट्स, वी आर मूविंग टू सीवियंस। ओके, सेवास थ्योरम, सीवियंस। ओके, मूविंग टू रिजल्ट्स ऑफ सीवियंस। सीवियंस क्या है, दिस इज वेरी सिंपल। लेट्स से दिस इज अ ट्रायंगल। ओके, लेट्स से ए बी सी। ओके, यहां से पॉइंट ए, वर्टेक्स ए को ऑपोजिट साइड से ज्वाइन कर रहा हूं, एनी लाइन, दिस इज नॉट नेसेसरीली अ मीडियन, नॉट नेसेसरीली अ एंगल बाइसेक्टर। ओके, एनी लाइन व्हिच इज जॉइनिंग वर्टेक्स टू ऑपोजिट साइड, दैट इज अ सीवियन। ओके, दिस कैन बी अ मीडियन, दिस कैन बी एंगल बाइसेक्टर, बट नॉट नेसेसरीली, एनी लाइन व्हिच इज जॉइनिंग, दैट इज अ सीवियन। ओके, सो these are conditions of CVN. Okay, this is D E F. Okay, let's say this is O. ये CVNs हैं, कोई मीडियन नहीं है, एंगल बाइसेक्टर नहीं है, एनी लाइन विच इज जॉइनिंग वर्टेक्स टू अपोजिट साइड। ओके, दैट इज कॉल्ड अ CVN। इसमें कुछ रिजल्ट्स में लिख रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ AO बाय
और एल्स फर्स्ट यहां से बिगिन कर रहे हैं. फर्स्ट रिजल्ट इज सीवियन के केस में ओनली दोज रिजल्ट्स आर इंपोर्टेंट जहां पे सीवियंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. जहां पे सीवियंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे. सो इस केस में रिजल्ट्स आपके होंगे. फर्स्ट रिजल्ट इज ओडी बाय एडी प्लस ओई बाय बीई प्लस OF by CF. This is 1. This is 1. This is first result. First result. Second. AO. Sorry. OD बोल दिया मैंने. AO by AD plus BO by BE plus CO by CF. This is 2. This is second result. Fine. Third result in case of Sevians is AF by FB into, this is very important, मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूं, AF by FB into BD by DC into CE by EA. AF, FB, BD, DC and CE, EA. हाँ, this is equal to 1. Okay, note it down. These are three results of Sevians. Fine. Now moving to the last result of today. Last result, this is your Carnot's theorem. Name is not important. Okay. Carnot's theorem, name is not important, but the result is this. ये कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली यूज हो जाएगा. एनी पॉइंट इनसाइड अ ट्रायंगल, वहां से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे. ओके, परपेंडिकुलर टू दिस साइड, perpendicular to this side and perpendicular to this side. Any scalene triangle, let's say this is scalene triangle, any point inside a triangle, scalene triangle उसके अंदर any point, वहां से हम लोग sides पे perpendicular drop करेंगे. So the result is DEF. Result is AD square plus एक छोड़ के, this is BE square plus CF square. This is equal to BD square plus EC square plus CF. This is AF square. Fine. This is the result of Carnot theorem. Any triangle, this applies to any triangle, let's say any scalene triangle, any point inside a triangle, respective sides पे हम लोग perpendicular drop करेंगे. So this is the result. ये directly exam में use होगा questions में. Okay. So that's it. With this we come to the end of triangle. Okay, सारा results हमने देख लिया, सब कुछ I have summarized in this class. Okay, so tomorrow we'll see quadrilaterals, okay, and trapezium. Fine. So that's it. Any feedback you can write in the comments. Okay, make sure to share with your friends. Thank you so much. Sir, over. କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା?